Hello sir, myself Gaurav Singh Yadav and I am pursuing my mastering from Crodimal College. And so we have seven member in our group. Abhishek from Ramjas, and Harish Chandra, Anuj Yadav, Avinav Bharati, and Abhishek Singh, Senior Department of History, Rahul Yadav, and myself also. Mostly we had to keep light on first and second voyage of the Columbus, and our group worked on separately on different types of question emerges with the passage of time. So the question emerges just like that: was Columbus really an expert navigator? So I will starting a broad introduction about the Christopher Columbus. Columbus was a Genoese-born navigator, explorer, colonizer whose epochal voyage west across the Atlantic Ocean in 1492 in search of direct sea route to the Indies established permanent European contact with the unknown land and the peoples of the North and South America. Columbus' voyage, combining audacious confidence and supreme seamanship and explicit faith that he was called by the God for the task of bringing Christian religion to the remote areas of the world, and his name meant Christ bearer inaugurated is the most profound advance in the humankind awareness of the planet and the formative interchanges among the disparate cultures that would lead to the emergence of modern world. Columbus voyages took place during the early decades of the European age of exploration. Following advance in ship designs and navigational instrumentation enabled the Portuguese explorer to venture down the African coastlines in search of sea route to India. By the mid 15th century, the historic barrier of the Sahara had been overcome, and a lucrative trade in slaves and gold provided incentives for the further exploration. In 1487, Bartholomew Diaz rounded the Cape of Good Hope on the southern tip of the Southern Africa, and 1498, Vasco da Gama crossed the Indian Ocean and reached the southern tip of the Indian coast. And Columbus instead proposed to strike out directly west across the unknown Atlantic and through tenacious determination secured the backing of Spanish sovereigns Ferdinand and Isabella for the visionary voyage. After that, our next question is how did the native respond to this encounter in both voyages? So our second member Abhishek from Ramjas is proudly clarify this question. My name is Abhishek and I am from the Ramjas College, and my topic is how did the indigenous people responses to the Europeans. The natives' responses to the encounters varied. In Columbus' first voyage in 1942, some indigenous peoples were curious and friendly, while others were wary and hostile. In subsequent voyages, interaction often turned more confrontational as Columbus sought to assert control over the lands he encountered. In contrast, during Captain Cook's voyage in the 18th century, the encounters were indigenous peoples in the Pacific were initially marked by mutual curiosity and trade, but extension arose over the time, especially as Europeans extended more influential and introduced diseases. Initially, indigenous peoples often greeted European explorers with curiosity, viewing them as exotic visitors from distant lands. They sometimes offered hospitality, food, resources, while European explorers were often fascinated by the new cultures, language, and the customs they encountered. Trade Trade flourished in many instances as both parties exchanged their goods and ideas and thoughts, leading to the spread of new technology, crops, and animals. However, as Europeans' exploration and colonization progressed, interaction between the two groups became increasingly fraught with tension. European powers sought to assert control over indigenous lands and resources, often resorting to coercionic, violent, or forced labor to achieve their goals. Indigenous resistance to European encroachment led to the conflict and wars, resulting in the loss of lives and the displacement of entire communities. Moreover, the introduction of European diseases such as smallpox, measles, and influenza had a devastating consequences for indigenous populations who lacked
immunity to these illness epidemics, ravaged communities and decimating populations and weakening social structures. Thank you. सर मेरा नाम हरिश्चंद है, कॉलेज सर राजधानी। सर मैं क्रिस्टोफर कोलंबस की जो 4 यात्राएं रही हैं उसकी कुछ 1-2 वॉल्यूम का कंपैरिजन करना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं कोलंबस की 4 यात्राओं में 1453 में जब ओटोमन साम्राज्य और बैजेंटीन साम्राज्य में जब झगड़ा होता रहता है धर्म युद्ध, तो 1453 के करीब 1453 में कुछ यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य कब्जा कर देता है। उसके बाद यूरोपीय लोगों के लिए इंडिया आना स्थल मार्ग से बड़ा ही कठिन हो गया था। उनको सीधे पहले इंडिया से व्यापार अरब देशों को जाता, फिर उधर वो इटली वगैरह होते हुए और अच्छा खासा टैक्स वगैरह लगते हुए उनको चीज़ें महंगी मिलने लगी थी। उसी क्रमानुसार इन लोगों के यूरोपीय लोगों द्वारा इंडिया को खोजने के लिए, जैसे टॉलमी और जो पुराने यात्रा वृत्तांत थे उनसे कहावत मिली थी कि भाई पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल के हिसाब से इन लोगों ने अपने कयास लगाए कि हम इंडिया को ढूंढ सकते हैं। उसी उपरांत बहुत सारे नाविक निकले भी, जिसमें से यात्राएं शुरू हुई समुद्री मार्ग द्वारा, जिसमें के कुछ लोग केप होड तक साउथ नीचे तक गए और उसी में स्पेन और के द्वारा प्रयास, राजा रानियों द्वारा और कुछ ईसाई धर्मों के द्वारा भी प्रयास किया गया कि भाई नई जगह जो इंडिया में लोग हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम ईसाईयत धर्म में बदल सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने राजा से सहमति पाकर कोलंबस अपनी 1492 में यात्रा शुरू करते हैं और अपने साथ 2-3 जहाज़ लेके निकलते हैं और सारे व्यक्तियों को लेकर। उसी तरीके से वो सबसे पहले कैरिबियन द्वीपों पर जाते हैं। उन्होंने बीच में ढेर सारे अनुभव महसूस किए, अच्छी खासी चलते जाते हैं। उसमें फिर लैंड का भी एक दिक्कत रहती है कि सबसे पहले किसने उस ज़मीन को देखा। ये भी एक वैश्विक इतिहास में विवाद का इशू रहा है। और कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्तमान उपस्थिति में हम देखते हैं कि अमेरिका में एक ये भी विवाद रहा है कि क्या सिर्फ कोलंबस ने ही अमेरिका को खोजा या उससे पहले अमेरिका को यूरोप वासियों के लिए थी नहीं, जानकारी नहीं थी। या देखते हैं कि उसकी कोलंबस की अमेरिका में स्टैचू वगैरह तोड़ दिए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के आती है हमारे सामने, जिसमें 1492 में उसकी यही यात्रा रहती है। उसमें वो उन लोगों से, वहाँ के रेड इंडियन लोगों से मिलता है, उनके अनुभव प्राप्त करता है। वहाँ देखता है कि वो लोग अपने लेखों में और अपने पत्रों में, डायरी में वो लिखता है कि वहाँ के लोग नग्न अवस्था में रहते थे, अपने वही पेड़ पौधों से उस तरीके का खाना प्राप्त करते थे, मछली वगैरह खाते थे और बड़ा उसका अच्छे से सम्मान करते हैं वो लोग। और इसी उपरांत वो देखता है कि उनमें से जब अपने मूल देश जब लौटता है वो, उस समय वहाँ से वो कुछ लोगों को पकड़ के ले जाता है। वहाँ उन लोगों को जाके अपने देश में बताता है कि हम यहाँ उपनिवेश कर सकते हैं, इनके संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना गोल्ड वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने धर्म का भी प्रसार कर सकते हैं। इस तरीके से कन्वर्ट लोगों को अपने यहाँ करा के वो अब उनका उपनिवेश की प्रक्रिया का प्रयोग शुरू रहता है। लेकिन इसी उपरांत हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रहा था कि उन लोगों ने, जैसे ही कोलंबस वहाँ पहुँचता है कैरिबियन देशों में, तो वो वेस्ट इंडीज़ को ही इंडिया नाम दे देते हैं। वो इंडिया समझते ही उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दे देते हैं वो लोग। ओके सर, थैंक यू। Hello everyone, my name is Abhishek Singh Sunet. I am from Department of History. Today I am explaining how have documentaries fared in visually capturing Columbus adventures.
Columbus adventures on film. Documentaries have faced the challenges of visually depicting the historic voyages of Christopher Columbus. Filmmakers must find innovative ways to transport viewers back in time and vividly recreate these pivotal moments in history. The challenges of capturing historical events: first, limited primary sources; second, geographical limitations; third, depicting the unfamiliar. Evolving documentary techniques are: first, early documentaries; second, modern approaches; third, future innovations. Recreating the voyages of Columbus: successes, limitations, and innovations. Balancing history and storytelling, authenticity, engaging narratives, interpretation. Incorporating primary sources, journals and logs, eyewitness accounts, artistic interpretations, technology advancement, high definition cameras. Uh, in this section, advances in camera technology have allowed for more detailed and immersive visuals in documentaries. Second, CGI and visual effects. The use of computer-generated imagery and visual effects has revolutionized the way filmmakers can depict historical events. Aerial footage. In this section, drone technology has enabled filmmakers to capture sweeping cinematic aerial shots that provide a new perspective on Columbus voyages. The enduring legacy, inspiring exploration, fostering understanding, evolving perspectives. That's all from my side. Thank you, everyone. Hello everyone, my name is Abhinav Bharti एंड हम जो है कोलंबस की यात्रा वृत्तांतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार की उसकी पहली और दूसरी यात्राओं के समय जो भी कुछ घटित हुआ है उसके बारे में चीज़ें को हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि कोलंबस जो है अपना पहली यात्रा में आधा समय लगभग समुद्री यात्रा में ही निकाल देता है और उसने अपनी यात्रा 5 अगस्त को प्रारंभ करता है और नवंबर में वो लगभग अमेरिका के द्वीपीय देशों में जो आसपास द्वीपीय देश हैं उसके आसपास पहुंचता है और वो द्वीपों में जाता है। उसके जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो उसका मुआयना करता है, मुआयना करने के बाद जो है वो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे बातचीत करता है, मिलता है और हम उसको ये भी देखते हैं कि उन द्वीपों का उनका नामकरण भी करता है और नामकरण भी कुछ इस प्रकार करता है कि वो उन द्वीपों का नाम अपने राजा रानी या किसी गॉड के या जो भी उनकी मान्यता है उनके अनुसार उन द्वीपों का नाम रखता है या पहले जो भी उनका नाम हो उसको उस पर वो ज़्यादा सोचता नहीं है, उनका नामकरण कर देता है। ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे सांता मारिया, वेनावामी, हिस्पेनियाला और इज़ाबेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पर और जो उन द्वीपीय क्षेत्रों में जब वो गया तो वहाँ उसने देखा कि वो लोगों से मिला वो और लोगों से मिलने के बाद उसने जो है उसकी सोसाइटी को देखने का प्रयास किया। जैसे वो एक चीज़ ये बताता है कि वहाँ का जो है वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था और उसने जो है वहाँ के लोग इतने भोले थे कि उसने एक टूटा हुआ गिलास से एक टूटा हुआ गिलास देकर उन लोगों से सोना या कुछ बहुमूल्य रत्न जो है प्राप्त कर लिया। तो ये बताने का प्रयास करता है कि एक यूजलेस चीज़ से उसने जो है बहुमूल्य चीज़ प्राप्त कर ली और उसने उसके बदले में उसको सोना, कॉटन, खानों या पीने की कुछ सामग्री मिल गई और उसका जो है पहली यात्रा में उसका प्रमुख लक्ष्य था कि सोने की खदाने की खोज करना, कि सोने खदान जो बहुमूल्य रत्न वाली जो खदान है उनकी जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए उसने जो है वहाँ के लोगों से बातचीत की और वहाँ के नेटिव लोग और
वहाँ पर जो है कई प्रकार के नेटिव लोग थे। कोस्टल एरिया में अलग अपना प्रबंध चल रहा था, लेकिन जो आंतरिक भाग था हाँ वो नहीं जाता है। कोस्टल एरिया में ही उसका पूरा ही पहली यात्रा उसकी कोस्टल एरिया में ही निकलती है, और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे बातचीत करता है, और या फिर जो कैनिबल लोग हैं, जो मांस खाने वाले लोग हैं, इंसानों का मांस खाने वाले लोग हैं, उनसे भी वो बातचीत करता है। और जब वो जाता है तो वहाँ पर एक सेटलमेंट बसाते हुए कुछ लोगों को वहाँ पर रख के और वो अपना वापस अपने देश बैक हो जाता है। और दूसरी यात्रा वृतांत में जब वो आता है तो वो देखता है कि जो उसने सेटलमेंट बसाया था वहाँ पर जो है लोग जो हैं मारे जा चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, पहली यात्रा वृतांत में जब वो आता है तो वहाँ से कुछ नेटिव लोगों को भी ले जाता है, और नेटिव लोगों को ले जाकर जो अपने राजा या रानी को दिखाता है। लेकिन हाँ, उसकी एक संकीर्ण सोच भी हम देख सकते हैं कि जब वो नेटिव लोग जो है जो वहाँ जाते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, या फिर जो है वो उन लोगों में कोई बचता नहीं है, तो उनका जो है जो दफनाने की प्रक्रिया वो पूरी नहीं की जाती, उनको ऐसे समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ जो सेटलमेंट उन्होंने बसाया था उन सबको नेटिव लोगों ने मार दिया। कुछ उसके भी कारण थे कि वो जो सेटलमेंट बसाया था वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वहाँ की नेटिव महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया, रेप करने का प्रयास किया, इसलिए वहाँ पर जो लोग थे वहाँ भटक गए और उन लोगों को मार दिया। और उसकी समाज में जो है वो लोग पूजा करते थे, कुछ स्टोन वगैरह की पूजा करते थे, वो खाना पीना और खाने पीने के लिए वो जो है कॉर्न का यूज़ करते थे, मछली, क्रैब, या फिर हम स्पाइडर हम या फिर जो वहाँ के आसपास जो फल फ्रूट मिलते हैं उनका प्रयोग करते थे। वो सांप और कुत्तों का भी कुत्तों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हाँ वो ऐसा कुछ नहीं बताते हैं इसमें 4 पैर वाले किसी जानवर का जिक्र होता है। और पहली जब यात्रा गया तो उसने जो है इन लोगों को बर्बर बोला, ये बर्बर लोग हैं और ये सब, इनको कोई समझ नहीं है इस बारे में, वो इस बारे में भी बात करते हैं। और दूसरी यात्रा में जब जाता है तो उनको इंटेलिजेंट बोलता है कि ये जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपना काम अच्छी तरह निभा रहे हैं। और ये लोग जो है कपड़े जो है बनाते थे लेकिन पहनते नहीं थे। कुछ ट्राइबल जो है प्राइवेट पार्ट में तो पहनते थे, लेकिन उतना उसका जिक्र नहीं मिलता है कि वो एकदम पूरा तरह के यूज़ कर रहे हैं कपड़ों का। वो भाला, तीर, कमान, लकड़ी का यूज़, स्टोन के हथियार बना कर प्रयोग कर रहे हैं। जो हाँ, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी एक देखने लायक है कि जो महिलाएं हैं वहाँ पर वो अपने लोगों के साथ जो है वो शिकार करने भी जा रही हैं, जो कैनिबल महिलाएं हैं वो शिकार करने भी जा रही हैं। ऐसे इससे हम ये जानकारी ले सकते हैं कि उनकी स्थिति एक कुछ ठीक ही थी, क्योंकि ट्राइबल एरिया में जो है महिलाओं की स्थिति जो है, जब महिला पुरुषों के साथ काम करते हैं तो उनकी स्थितियों का वर्णन हमें उससे जिक्र मिल जाता है। और जो कोलंबस ने जो है प्रारंभ में उस जो नेटिव लोगों ने उनके लोगों को मारा था, उसके प्रारंभ में तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे लोगों से मिलता है, इंटैक्ट होता है, तो लास्ट में जो है वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनको मार देता है। और वो उसका प्रमुख लक्ष्य पहले बता चुका हूँ कि उसको सोने की खदानों का जो है उसका पता लगाना था कि संसाधनों को हम कैसे यूज कर सकें यहाँ से। तो ऐसे वो प्रयास करता है और उसमें लगभग सक्सेस भी हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। कोलंबस के बारे में कुछ या उनकी यात्राओं में प्रकाश डालना चाहता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया के लिए पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग की तलाश में 1492 और 1504 के बीच अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं की। उनके अभियानों के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, विशेष रूप से अमेरिका का यूरोपीय उपनिवेशीकरण। एशिया तक नहीं पहुंचने के बावजूद कोलंबस की यात्राओं ने पुरानी और नई दुनिया के बीच में निरंतर संपर्क शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप कोलंबियन एक्सचेंज हुआ, जो पौधे, जानवर, बीमारियां, अनेक प्रकार की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। उनकी यात्राओं ने स्वदेशी आबादी पर स्थायी प्रभाव
डालते हुए अमेरिका में स्पेनिश प्रभुत्व भी स्थापित हुआ। कोलंबस के अभियानों ने वैश्विक व्यापार और नेविगेशन को एक नया रूप दिया। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के लिए आधार तैयार किया। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Anuj Yadav and I am from Department of History. I am going to discuss about the second voyage of Christopher Columbus towards America, that is also known as the New World. It occurred between 1493 to 1496. After the first voyage of Christopher Columbus towards America in 1493, Christopher Columbus embarked on his second voyage towards America, that is also known as the New World. But this time he fleet with 17 ships and 1200 men. The goal of second voyage was to establish a Spanish permanent presence in America and expand the colonization efforts in America, that is New World. So second voyage of Christopher Columbus proved very crucial for the Spanish foothold in the America. One of the reasons was in the second voyage Christopher Columbus established the settlement of Isa Valley on the island of Hispaniola. By the way, this was the first European colony in the world at that time. So main motive was to exploit the resources of America and send them towards Europe for the uses of Europeans and for the profit of the crown that sponsored the voyage of Christopher Columbus, the Spanish crown, and for the merchants of for the European merchants. But after the successful founding of the colony of Isa Valley in Hispaniola, Christopher Columbus and the Spanish crown set their sight on further exploitation of other regions. So they started with the exploitation of the new region, that was Caribbean islands. So Christopher Columbus made his expeditions towards Caribbean island, and the motive was to solidify the Spanish control over that region.